Hare Krishna, good evening and welcome all of you all for our Saturday evening Bhagavatam class. So we are in the midst of the 15th chapter of Canto 1 of Bhagavatam. So उन्होंने last time 1.15.15 तक complete किया है. So we'll just have a fast recap. Anyone can tell me what they have understood in the last session? Prabhuji, in the last session, Arjuna is glorifying Krishna. Yes. And he's saying that in the Mahabharata itself, Krishna was the prime hero. Yes. Even though everybody were fighting, Right. and he reduced the life of The enemies. enemies to 18 days. Yes. And what else? All his strength was due to Lord only, and he That's the same thing you're saying. Yeah. Something more? And then Prabhuji, we talked about Jarasandha. Jaras. Yes. Jarasandha, the story of Jarasandha. And and also Bhim is a representation of ego. So he was, when he was asked to look at Krishna, he did not look at Krishna because he thought that he was Capable enough capable. to. Yeah. He did not surrender. He was not in a fully surrendered mood. He was capable of thinking that he will do it himself. And then, when he was beaten badly, he went. And he also happens, it's nothing with Bhima, it is with us also. जब जिंदगी में कोई मुड़ता नहीं है, लफड़ा होता है, जीवन चलता नहीं, गाड़ी नहीं चलती है, any problem we face, तभी हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं. अमिताभ बच्चन की तरह आज तो बहुत खुश हो गए तुम, हाँ, ये सब डायलॉग मारेंगे. और जब भगवान आपका सब बढ़िया चल रहा है, कितने लोग भगवान की याद करते हैं थिएटर में जाते वक्त, होटल में जाते वक्त, थिएटर में जाते वक्त, शादी ब्याह में, ब्यूटी पार्लर से एकदम तैयार बन के जा रहे, तब कोई भगवान को याद करता है? कोई याद नहीं. ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम्स वी रिमेंबर गॉड. बट गॉड सेज those who pay their premium at the time of enjoyment, when things are going very fine, जब उस वक्त जो भगवान को याद करता ना, तब उसको मैं बुरी वक्त में मैं संभालूं. I take care. Before we go ahead, I would like to share one nice incident. We had studied last week also. He could not save the wives. I think that had come right last week. Yeah. That he could not protect the wives. उसके ऊपर विष्णु पुराण से एक बहुत बड़ा कथा है. It's worth listening it. It tells the backdrop also why he was not able to save, and Arjuna was crying. उसके बारे में पूरी कहानी है. See, always remember, थोड़ा 19-20 फर्क रहेगा कहानी में between one पुराणा to the other पुराण. क्यों? बोलने वाले की शैली क्यों? Vishnu Puran was written by Parashar Muni. It was the only Puran written by Parashar Muni. Rest all were written by Vyasadeva. 18 Puran है, उसमें से first is Vishnu Puran, which is in Satogun. 18 means 6 3s are 18. 6 Puran are in Satogun, 6 are in Rajogun, 6 are in Tamogun. आपका तंत्र विद्या सब जो तमोगुण वाला ये है ना, उसमें सब आएगा तंत्र विद्या and all that. Black magic, Aghori. That people go with this fascination है ना, Aghori Babas of the Kumbh Mela. It's nothing new. They are not just sprouted today. You are getting aware today. They were there from time immemorial. आज हम लोगों को नई चीज लग रही है कि आज हम के बारे में जानने की कुछ एक हिंदुत्वता और कुछ all this social media and all us giving us exposure. So, in Vishnu Puran, the same incident is narrated very nicely. Arjun is called by Krishna. Uddhava. Uddhava asks him, अभी आप तो इस लीला को वाइंड अप करके जाने वाले हो, तो आप मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? मैं इस धरती पे क्यों रुकूं? Why should I stay? I would rather live and go. आप नहीं है तो फिर मुझे रह के क्या करना? Again, a thought process very contradictory to our thinking process. भगवान हो न हो, भगवान अपने जगह पे, मैं अपनी जगह पे, अपना खुशी देख के मैं रहता हूँ. But Uddhava was not like that. So Krishna said, don't worry. First and foremost, भागवत महात्म्य में clear cut लिखा है. I will stay in
भागवत पुराण। भागवत पुराण में जो काले अक्षर हैं वो कृष्ण हैं और जो सफेद पेपर है वो राधा रानी। इट इज ऑलरेडी मेंशन इन भागवत महात्म्य। तो उस वक्त क्या होता है, दे टेल हिम अर्जुन को बुलाओ और अर्जुन को बोलो मेरे सारे पत्नियों को लेके जाए। एंड देन ऑलरेडी यू ऑल नो द स्टोरी ऑफ सांबा, द स्टोरी ऑफ सांबा मालूम है ना, मूसल का स्टोरी। फास्टली रिकैप इट। सांबा was the grandson, great grandson of Krishna. So he went and started to do some mischief. He wanted to play with some sadhus के साथ mischief करना चाहता था। तो उसने जाके उसको अच्छी तरह से लेडी की तरह ड्रेस करवाया और उस साधु के पास लेके गए उसके सारे दोस्त और साथी और बोले कि ये लड़की है, ये अभी माँ बनने वाली है, ये जानना चाहती है ये लड़का होगा कि लड़की। It was very insulting. The sadhus were Trikaldarshi, the true sadhus. Immediately the sadhus got very angry, especially Durvasa Muni and Narad Muni and all were there in that sabha. And even Vishwamitra was there in that sabha. And उस सभा में जब उन्होंने बोला, immediately the sadhus curse that तेरे पेट में एक लोहे का what is it, ball, iron ball, you will give birth to an iron ball which will crush the entire family. आपका पूरा कुल उसमें नाश हो जाए, ऐसा श्राप दे देते। तो सांबा डर जाता है, घर में आता है, देखता है वाकई में ही gives birth to a iron club, big iron ball। परेशान हो जाता है, क्या करूं? Immediately goes to Agrasen, महाराज अग्रसेन, tells ऐसा ऐसा हो गया है, मुझसे गलती हो गई है। तो उन्होंने बोला ठीक है, काम करो, इस लोहे के जो बॉल है उसको क्रश करो, पाउडर करो, काट काट के उसको छोटा छोटा आयरन फाइलिंग्स बना दी, स्मॉल फाइलिंग्स ना, जो आपका फाउंड्रीज में सब निकलता है ना फाइलिंग्स, वैसा आयरन का लोहे पाउडर बना दिया। सब पाउडर बना दिया, एक टुकड़ा पाउडर बना दिया, इतना बड़ा टुकड़ा रह गया। बोला सब लेके जाओ और समुद्र में जाकर डाल के आओ। तो पाउडर बना के समुद्र में डाल दिया। वो जितने भी फाइलिंग्स पानी में गिरे, they all grew to be reeds, जंगली झाड़ होते हैं ना, उसमें आप समुद्र के किनारे देखो ना, लंबे लंबे घास जैसे होते हैं, they are called reeds, and उसमें ना नुकीले पत्ते होते हैं, पत्ते और कांटे होते हैं, क्योंकि पत्ते ही कांटेदार होते हैं। यहाँ पे पत्ते नहीं हुए, वही लोखंड का जो था वही पत्तों की तरह उगे। This happened in Prabhashyatra, very close to Dwarka, and he tells Uddhava, you go elsewhere and you meditate. You go to Badrinath and meditate. And when Arjuna comes, tell him that, give him the instruction that मेरी सारी पत्नियों को लेके जाए, मैं जा रहा हूँ प्रभास क्षेत्र और वहाँ सब यदुओं को मुझे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि पहले दिन रात को ही कृष्ण जब लीला वाइंड अप, दिस हैपेंस इन रामायण ऑल्सो, इन भागवत ऑल्सो। जब भी भगवान का लीला का पूरा जो पर्पस है वो पूरा हो जाता है ना, तो देवी देवता कोई ना कोई स्वरूप में आते हैं। तो देवता आए, यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो यमराज खुद आए, ब्रह्मा जी खुद आए थे रामायण में, बोला आपका काम हो गया है, आप वापस धाम में आ सकते हैं। तभी उनका लीला ऐसा वाइंड अप लीला रहता है, निरोध लीला कहते हैं इसको। तो लीलाओं का जो भूमि का जो लीला है वो खत्म करके वापस अपने धाम चले जाते हैं। तो देवताओं ने आके बोला था कि आपका कार्य हो गया, आप चाहे तो रुक सकते हैं, चाहे तो आ जाते हैं। बोला आज से 8वां दिन में निकलूंगा, from the 8th day from today I'll come back. Immediately calls Uddhava, tells all this, you go, and he takes all his yadus to the Prabhashya. उसके पीछे कारण था, he didn't want the yadus to stay back because कहते हैं ना समुद्र में बड़ा मछली छोटे मछली को निकलती है, छोटे मछली और छोटे मछली को निकलती है। तो ये मुझे ये नहीं चाहिए, यहाँ पे उनका वर्चस्व हो जाएगा, because then they will be unconquerable. यदु है भाई, कृष्ण के साथ लड़े हुए, तो they will be unconquerable. Finally he takes them to Prabhas Kshetra for a picnic, and वहां पे he deliberately gives them intoxication. Somewhere it is said he gives liquor, somewhere it says he gives them somaras. That is, we can always also call it as what do you say?
वारुणी 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 पिला दी। वारुणी इज साइट ऑफ सात्विक अल्कोहल ओनली, तो उसको पिला दी। सब पीने के बाद खुश हो गए, कुछ ना कुछ झगड़ा हो गया, एंड द यदु स्टार्टेड किलिंग देमसेल्व्स। ऑल द छोटा एंड मिडिल यदुस ऑल डाइड। जो बड़े बचे उनके साथ कृष्ण ने लड़े, कृष्ण ने उनको भी मार दिया, एंड ऑल वर किल्ड। उसके बाद एक पेड़ के पास जाके लेट गए। नाउ यू मस्ट हैव, आई टोल्ड यू, ऑल द पाउडर्ड आयरन फाइलिंग्स बिकेम द रीड्स, और रीड से लड़े और रीड से मर गए। मतलब साधु का श्राप कभी गलत नहीं जाता है, कटे उस रीड से वो लोग कट के मर गए। जो एक टुकड़ा लोहे का बच गया था, वो जो समुद्र में डाल दिया था, एक मछली निकल गया था, और उस मछली को एक हंटर ने पकड़ा था, एक याद ने पकड़ा उसको। पेट जब काटा उसमें से लोहे का टुकड़ा निकला। बोला बहुत अच्छा है नो, बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट। उस जमाने से चल रहा है, आज ही नहीं, पहले से चल। उन्होंने देखा अरे ये मैं तो मेरे लिए बढ़िया एरो बनेगा, वेरी गुड एरो टिप, परफेक्टली पियर्स। सो मेड एन एरो टिप। एरो का जो बाण का जो नोक होता है उससे लोहे से बनाया, बढ़िया एरो बनाया। उसी लोहे से उसने उठा के बाण चलाया कृष्ण के ऊपर, ये समझ के। दूर से उसने सिर्फ कृष्ण का पैर को देखा था। हम लोग द्वारका से आते हुए वो जगह गए थे, याद है, हम लोग गए थे वहां पे। तो कृष्ण के पैर का जो नोक है उसको दूर से हिरण का कान लगा, एंड ही फायर्ड दैट, एंड कृष्णा का टिप ऑफ द टो वहां पे जाके वो एरो लगा। नाउ टेल मी, आप लोग किचन में कितना बार सब्जी काटते हैं लेडीज? कितना बार हाथ में कटा लेगा? मरा Just imagine tip of the arrow touching the tip of the toe, and the person is about to wind up. No, he calls. Jara comes nearby. That is the hunter comes nearby and he says, "अरे मैंने गलती कर दिया, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, मैंने आपको मार दिया." बोला तूने नहीं मारा, मेरा निमित्त चाहिए था मुझे लीला वाइंड अप करने के लिए। अब ये जो बुद्धू लोग हैं ना, जो भौतिक दुनिया के लोग, जो मुझे समझते हैं मैं इंसान हूं जो एक शरीर के साथ आया हूं, एक काम करो, मेरे शरीर को जला दो, सो कॉल्ड शरीर को जला दो। जो तुम लोग समझ रहे हो, सी देयर आर ऑलवेज टू पीपल, टू काइंड ऑफ पीपल, वन हु एक्सेप्ट गॉड एंड वन हु डोंट एक्सेप्ट गॉड। सो दो फॉर दोज हु डोंट एक्सेप्ट गॉड आई हैव मेड अ प्रोविजन। मैंने एक तरीका बना के रखा है, रास्ता बना के रखा है, बर्न माय बॉडी with that body, so called body, or in that fire, main queens Satyabhama, Rukmini, they all entered the fire. They all entered the fire. Whereas the 1,000 wives, 1,100 wives, जो इसके पास से छुड़ा के लेके आया था ना, नरकासुर के पास, तो उनको बंदी बना के रखा था। उनसे शायद बंदी बनाया तो उनको छुड़ा के लेके आके यहाँ शादी करवा के रखे थे, तो उनको लेके जाते। दिस इज इन विष्णु पुराण, वेरी नाइसली मेंशन। Arjun takes care of all those 1,000 ladies. He is having his Gandhi bow, his quiver, which is supposed to be for ever giving arrows, मुझे कभी खत्म नहीं होने वाला। And वो सब लेके निकला, और रास्ते में एक लंबा रास्ता था, तो एक क्षेत्र आया जहाँ पे it was a beautiful field like, and वहाँ पे कुछ local डाकूस थे। They are local डाकूस, and they had planned of one thing. They heard that Arjun is coming with lot of wealth, Dwarka, and Krishna had already told Uddhav कि ये जो नगरी है ना, मेरे जैसे मैं धरती से निकल जाऊंगा पानी में डूब जाएगी। And it sank immediately after Krishna left the world. This whole nagari also left. तो जब उस क्षेत्र से जा रहे थे वो 1,100 वाइफ्स के साथ, तब उन्होंने सोच लिया कि बहुत सारा पैसा लेके जा रहे हैं, गोल्ड एंड 1,100 women are also there, वो भी हम लोग कब्जा कर लेंगे। So they attacked Arjuna. Immediately Arjuna tried to tie the string to the bow. लग ही नहीं रहे, मुश्किल से कुछ लगा, तो जो चार एरोस चलाया, it only scratched. It's written in Vishnu Purana
scratched the bodies of the hunters, डाकूस, डेकॉइट्स. उनके शरीर को सिर्फ खरोच करके गया. बाण लगाने, जिसने भीष्म को मारा है, जिसने द्रोणाचार्य को मारा, इसको मारा, उसको मारा, वो बड़ा हीरो. ही इज वंडरिंग व्हाट इज हैपनिंग. हिज स्क्यूअर, दैट इज, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? तरकश में बाण आ नहीं रहे, उसके तरकश में बाण नहीं आ रहे. He requires arrows to fire. He is not getting. He takes the bow and he pushes literally like a layman. मतलब आम आदमी कैसा हो, I mean गांधी बो से वो लोगों को मार रहा है और वो लोग हंस रहे हैं. उसको जिंदा छोड़ देते हैं, सारा सोना सब कुछ लेके जाते हैं, ये कुछ नहीं कर पाते. With the bow is just hitting them like a stick. He is hitting them. Becomes very sad. Somehow he comes to Vrindavan, and in Vrindavan he sees Vyasadev. वहाँ व्यासदेव बैठे, वो व्यासदेव के साथ जाकर होता है. And there's a very series of questions. Why have you lost your luster? Like यहाँ पे मालूम है, Yudhishthira asked a series of questions. वैसे Vyasadev asked a series of questions to Arjuna. He says, why are you looking so dull? Have you taken the share of a Brahmana? ब्राह्मण का हिस्से का खाना तूने खा लिया, किसी गरीब को देने वाला खाना तूने खा लिया. मीन्स व्हाट? इनडायरेक्टली यू आर टीचिंग धर्म. जो व्यक्ति ब्राह्मण का खाता है उसका स्थिति ऐसा हो जाता है. जो व्यक्ति किसी गरीब का हिस्से का खाना, मतलब उसका हिस्से का खाना खा लेता है, उसका ऐसा हो जाता है. क्या हैव यू डन एनीथिंग इम्प्रॉपर, रॉन्ग एक्टिविटी यू हैव डन व्हिच अ क्षत्रिय शुड नॉट डू? क्षत्रिय मीन्स वन हू इज पावरफुल. बल का दुरुपयोग नहीं किया तूने, कहीं तूने बल का दुरुपयोग तो नहीं किया. किसी नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. बट लुक एट माय सिचुएशन, आई एम क्राइंग बिकॉज आई कुड नॉट कंप्लीट द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्ण. आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्ण. एंड कृष्ण टोल्ड मी टेक दिस 1000 wives, 1100 wives, बट उनका अपहरण हो गया. तो ही टेल्स, डोंट वरी, दुखी मत हो. This was already predestined. Now I will tell you the story. What was the story behind those 1100 wives? कौन थे वो? एक बार अष्टवक्र, कितना लोगों ने सुना है अष्टवक्र का नाम? सुना है? अष्टवक्र एक बहुत बड़े साधु थे. In his father's, when his father was, he was in his mother's womb. That time he had corrected his father. His father was giving some preaching, some talking, and he was in his mother's womb. और गर्भ से बोल रहा है, पिताजी तूने ये गलत किया, ये किया, गलत बोला, ये गलत बोला. तो इतना शास्त्र का ज्ञान उसको गर्भ में था. तब पिताजी उसको कर्स करते हैं, तू मुझे सिखा रहा है, अभी तक तू बाहर आया नहीं और मुझे सिखा रहा है, बाप को सिखा रहा है. मैं तुझे श्राप देता हूं, तू 8 जगहों से तू वक्र बनेगा. वक्र मतलब बेंट, अगली, बेंट, उपजा कांडा, ऐसा लाइक ना, लोला लंगड़ा खाना भाई सब ऑल 8 जगह से होगा. तो जब उसको श्राप देते हैं वो बनता है. और वो किसका गुरु बनता है? जनक महाराज. So not this Janak, the earlier Janak, not this Janak, earlier Janak. So he is supposed to be one of the most tapasvi sadhus. Tapasvi, I have written in my book also, explained in detail. There are 5 types of heat which one has to bear. 4 in 4 directions. I have seen once at Kedarnath in Vrindavan, एक साधु आज भी करता है. समर के टाइम पे ऊपर सूर्य का ताप रहेगा, चारों बाजू अग्नि जलाते हैं, फायर जलाते हैं, और उसमें बीच में बैठ के वो लोग तपस्या करते हैं. I have seen this really in केदारनाथ, in वृंदावन केदारनाथ में देखा. उधर वो केदारनाथ में उल्टा अच्छा फीलिंग देगा ना, फील गुड रहेगा. यार ठंडी में तो गरम लगे, सब लोग जाके बैठ जाएंगे. एंड दैट स्कॉर्चिंग सन. एंड इन विंटर्स he used to go inside the water, and the water is to be chill. He used to be up to the neck deep. He used to be in the water. So एक बार कई सारी अप्सराएं आई थी.
thousands of apsaras had come, and they had come for moving around the place, and there when they saw Ashtavakra, they praised him. वाह, पानी में यहाँ तक ठंडे में बैठ के तपस्या कर रहा है, क्या तपस्वी है, महान आदमी। ऐसा तपस्या कौन था? रंभा, तिलोत्तमा, all those big apsaras. So when they were saying this, Ashtavakra hears and he says, I am very happy by your glorification. क्या आशीर्वाद चाहिए मांगो। तो the Apsara say, we want to have a husband who is best among the men. Who is the topmost and the best among the men? Well, the topmost and best among the men is only one. एक ही पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है। हम सब प्रकृति है कि हम लोग अपना शरीर बदलते रहते हैं, कभी पुरुष का शरीर तो कभी स्त्री का शरीर, डिपेंडिंग ऑन द लॉ ऑफ कर्म। हमारे कर्मों के हिसाब से कभी स्त्री का शरीर मिलता है, कभी पुरुष का शरीर मिलता है। कि हम एक आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं है, इट चेंजेस। हमको लगता है हम पुरुष के शरीर में कुछ भोग सकते हैं, हम सोचते हैं हम स्त्री के शरीर में कुछ भोग सकते हैं। भोगने के लिए शरीर नहीं दिया, शरीर का मकसद कुछ और है, हम कुछ और यूज कर रहे हैं। इट्स लाइक बाइंग अ रोल्स रॉयस एंड यूजिंग इट एज योर लगेज कार, यू नो, के सामान भरो, डब्बा रखो और घूमते रहो। इट्स अ मिसयूज ऑफ समथिंग। So he says, I'm blessed, I want to bless you with this. I can only bless you that only God will be your husband. Very तो खुश हो जाते हैं। पहले बोलते हैं नहीं why you are taking trouble, but finally they also accept, thank you very much. फिर कुछ देर बाद अष्टवक्र जल से बाहर निकलते हैं, उसको देखते हैं एकदम लंगड़ मंगड़ के आ रहा है। हेवन की रंभा और तिलोत्तमा वो लोगों ने जब देखा अष्टवक्र को उस कुरूप स्वरूप में, हंसने लगे। They started laughing. अष्टवक्र गुस्सा है, तुम मेरे स्वरूप को देख के हंस रहे हो, ये उनके लिए नहीं, हमारे लिए। हम लोगों का स्वरूप देख के हंसते हैं। कोई पतला है तो कोई मोटा है, तो कोई लंबा है तो टिंगना है, कोई गोरा है तो काला है। दिस इज ऑल, please understand, bodily concept of life. One who is in a higher mature level, he doesn't see him, ये अमीर है, ये गरीब है, ये मोटा है, ये पतला है, ये काला है, ये गोरा है। No. He should see him on the soul platform. That's why it is always said. First lecture in ISKCON में आदमी समझ जाता है, I am not the body and the soul. But जीवन में कभी उतार लेते। That is why Lord says, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् इति सिद्धे यद्दामपि सिद्धानां कश्चित् मां विद्धि तत्त्वतः। हजारों में, मनुष्यानां सहस्रेषु, हजारों में शायद कोई थोड़ा, एकाध व्यक्ति थोड़ा बहुत सिद्धि प्राप्त कर लेते। सिद्धि मतलब भक्ति की सिद्धि प्राप्त कर लेते। और उन हजारों, लाखों, करोड़ों सिद्धि जो प्राप्त किए हैं, उन लोगों में से शायद एक मुझे तत्वतः में जानता है। Only one knows me in fullness. Nobody else can know me. So this is the problem. हजारों में आते हैं, उसमें से, उन हजारों में से एक। So it is tougher than what is it? Your IIT entrance or जो भी मेडिकल एंट्रेंस, IIT एंट्रेंस, जो भी बोलो, उसमें से इतना कलेक्शन। मतलब आप इफ यू सी द कमांडोज कलेक्शन ना, सेंट्रल वेयर द कमांडोज आर चोजन, वो मिलिट्री में से ही चूज किया जाता है। मिलिट्री में हजारों लोगों को भर्ती किया जाता है, उसमें से कुछ लोगों को सुन के कमांडोज, और उसमें से भी कुछ लोगों को चुन के सम सुपर कमांडोज, यू नो दैट दे आर फॉर मोदी एंड ऑल, मतलब एसपीजीज एंड ऑल दैट, एलीट कमांडोज एंड ऑल दैट। सो उसी में से चीज करो। सो याद रखना, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल वांट टू बिकम elite commandos? You want to become really great in devotion. That's the challenge. मनुष्यानां सहस्रेषु। वही लोग थोड़ा देर पहले क्या बोल रहे थे? वाह क्या तपस्या कर रहे हैं, महान व्यक्ति है, महान है।
आशीर्वाद दिया, उस व्यक्ति ने आशीर्वाद दिया, उसी के ऊपर हंस रहे हैं। हम भी यही करते हैं, भौतिक दुनिया में यही करते हैं, लोगों पे हंसना हमारे लिए इट इज बाय डिफॉल्ट, इट इज बाय डिफॉल्ट। हंसना हम लोग वी लाइक लाफिंग एट समवन फॉर नो रीजन, एंड दैट इज नॉट अ ट्रू लाफ्टर। होल पर्पस ऑफ नाउ टुडे आई वाज जस्ट टेकिंग अ टर्न फ्रॉम देयर, आई सॉ क्या स्कूल में क्या चल रहा है, पोलो क्या, गोल्फ, गोल्फ, बॉक्स गोल्फ चल रहा है, बॉक्स गोल्फ। मैं बोला जिंदगी में नयापन, नया खेल, नया कुछ मनोरंजन, मनोरंजन भी मनोरंजन नहीं दे रहा है, इसके लिए उसके अंदर भी कुछ नयापन लाना है। पीपल वेंट डर्टी इन पॉडकास्ट इन द नेम ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट। किस हद तक मनुष्य गिरते जा रहे हैं? What is the purpose of getting all this so-called, I mean, newness when there is nothing new in this world? The water is not new, the air is not new, the sun is not new, the moon is not new. Everything is the same. जो आपके परदादाओं ने जो देखा, चंद्रमा, जो सूर्य को आपको परदादाओं ने देखा, आज आप भी देख रहे हो, आपके आने वाली हजारों पीढ़ियां भी वही देखने वाली। When there is no newness in anything in this world. पानी में सुना है साइकिल ऑफ वाटर, वाटर साइकिल स्कूल में सिखाया गया, हाँ, सेम वाटर गोज टू द सी, गेट्स इवेपोरेटेड, अगेन कम्स, इट पोर्स इट फ्रेश वाटर, फिर भी न्यू। हाँ, न्यू पैकिंग जरूर हो सकती है, हम लोग ऐड आता है ना, लक्स न्यू पैकिंग, रिन न्यू पैकिंग, नया नींबू, नया झागदा, इतना नींबू मालूम पड़ा घर पे नींबू का अचार क्यों लो, उसी को काट के अचार बना कब, अरे क्या बेवकूफी है। ठीक है, that's marketing, that's advertisement, fine, but finally there's nothing new. And this bodily concept of life is what is pulling us back again and again. We have to come out of this bodily concept of life. बोलना आसान रहता है, 2 मिनट में इवेपोरेट हो जाए। कहावत है ना, छोटा जोक है ना, एक रामचंद्र जी जब फाइनल वॉर कर रहे थे रावण के साथ, क्यों हैरो शूट किया, गर्दन कट गया, राम सोचा ओके वॉर इज ओवर, 2 मिनट में टुक, दूसरा से हाथ काटा, हाथ कट के निकल गया, 2 मिनट के बाद दूसरा हाथ। राम वॉज कंफ्यूज, क्या हो रहा है यार, मैं एरो मार रहा हूँ। तो विभीषण बोला नहीं, उसका पेट में ना, नाभि में है ना अमृत, उसकी वजह से ये सब भुदकते रहते, मतलब आप काटोगे नया आएगा। एक्चुअली ये रावण का साथ नहीं, सबके साथ है। क्लास सुनने के बाद सबका सिर कट जाता है, भगवान की वाणी सुन के सबका सर कट जाता है, एवरीवन्स हेड गेट्स कट ऑफ, एंड विद इन फ्यू मिनट्स घर जाते ही तो करके दूसरा फिर अगला हफ्ता आते हो, वापस भगवान की वाणी सुनते हो, आपका हाथ कटता है, गला कटता है, सब कटता है, वापस घर में जाके दूसरा, बिकॉज वी आर एक्सटर्नली चेंजिंग ourselves, we are trying to impose this change externally, we are not developing, trying to develop change from within. अंदर से हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। That is where the problem lies. It is not, every incident in Ramayana and Mahabharata has got a lot of understanding. बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं। तो रावण का सिर कट रहा हो, इट्स नॉट सीरियल में देखने में बहुत अच्छा लगता है, वो जिंग 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 आवाज आता है, and the arrow goes, cuts and रावण का सिर गिर गया और वो भी हंस रहे, हा गिर गया, 2 मिनट में वापस सिर आते हैं, हा हंस रहे हैं। Look, that's not that. That's what is practically happening. भगवान की वाणी सुन के हमारा भी हजारों सिर कट चुके हैं, जो इतने सालों से क्लास में आ रहे, और वापस ठोक क्यों, गले में माला लटकाना है, फिर सिर चाहिए। So please remember, one has to change and imbibe the knowledge which is given. And this is what Ramba Tilottama could not do. श्राप कि तुम्हारा पति तुमको छोड़ के चला जाएगा एंड तुमको डाकू लुटेरे लेके चले जाए।
फेल देयर एट देयर फीट. मतलब हमने क्या माना कि हमने गलती किया, बट इतना बड़ा गलती हमको नहीं करना चाहिए. तब जाके अष्टोकर बोलते हैं मेरा एक बार शाप दे दिया वो वापस तो नहीं ले सकता, उसमें डाइल्यूशन जरूर दूंगा कि आप लोग को उसके बाद तुरंत आप लोग आपके धाम में जा सकते, आप लोग वापस अपने धाम में जा सकते. तो what do you learn from this? These apsaras, though here they are supposed to be in the heavenly kingdoms, स्वर्गलोक में हैं, उनको भी भगवान का दर्शन नहीं होता. So the only place to see God or visit God or to interact with God is only two places. Either you go to Vaikuntha or come to this earth and listen to the Lord's Katha, Lord's Leelas, and by this you enjoy the Lord in His presence, you can experience. There are only two places where you can meet the Lord. या तो इस धरती, इसके लिए इसको दुक्खालयम अशाश्वतम कहा गया है. 84 लाख योनि के बाद एक मनुष्य योनि मिलता है जिसमें हमको एंजॉय करना. क्या एंजॉय? सेम ओल्ड कचरा. That's why प्रहलाद महाराज से पुनर्चरित चरवाणम जो खाया है, आपके दादाजी ने क्या खाया? इडली सांभर, वड़ा सांभर, ढोकला, पैटीज, ये सब खाया. आप भी खा रहे हो, आपका पोता भी खाएगा. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? आजकल फ्रूट में भी ड्रैगन फ्रूट क्यों? मेरे दादाजी ने नहीं खाया, मैं खा लूं. क्या फायदा? We were just trying to give in kiwi and your other fruits. Why are Indian fruits not potent enough to give you the pleasure? और वो लोग क्या कर रहे हैं? इंडियन आम मंगा के खा रहे हैं. You go to the entire world today, Indian mangoes are famous, but we are running behind their fruits, kiwi, Japanese fruit, and all that stuff. Crazy, searching for happiness. और यहाँ के मेन पर्पस इज भगवान का गुण सुनो, वाणी सुनो. दैट टू इन ह्यूमन बर्थ, born in India, plus you are born in a family which has got slight spiritual inclination. इससे बड़ा लक और क्या मांग सकते हो भगवान से? और एक बड़ी चीज, you all are so lucky, you all are having some time to come in the evening and attend class. That is also a kripa. Tell me, I know hundreds of people who are not in a position, who want to, who desire to, but they are not in a position to come for a lecture. कारण कुछ भी हो. They are working in New Bombay, staying in Borivali. It's always the case. सेंट्रल वाले को वेस्टर्न में नौकरी मिलती है और वेस्टर्न वाले को सेंट्रल में नौकरी. दादर में दोनों भागते थे, अभी मेट्रो से भाग रहे हैं. ठीक है, कितने लोगों के अंदर कितने लोगों के चांसेस है टू कम एंड अटेंड द क्लास? दिस आई रियलाइज्ड मच अर्लियर एंड आई नेवर मिस्ड a class in my time. I was like Rajesh Balsar in that matter, I would say. I was also too regular for the classes. I mean, extra classes, 3-day Bhagavad Gita course, this and that, everything I used to attend hundreds and thousands of times. And every time some realization was there, some take home message was there, and something for me to change was there. Otherwise everyone knows very well. हाँ, प्रभु जी के क्लास में जाएंगे, क्या बोलेगा? दारू नहीं पीने का, नॉन वेज नहीं खाने का, हाँ, व्यभिचार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है. ये नहीं करेंगे तो जीतेगा. जिंदगी का मजा तो उसी में है, जिंदगी का मजा उसमें नहीं. जिंदगी का मजा क्यों उसमें नहीं? बिकॉज वो नरक का दुआ है. नरक कितने देखा है? मैंने कभी नरक देखा नहीं है. तो देन द क्वेश्चन कम्स, जेल देखा है? कितने लोग जेल जाके आए हैं? कोई नहीं गया, फिर भी है ना, पता है जिसने किया उसको लेके गए. वैसे ही है, जब यमदूत आएंगे तब पता चलता है, अरे बट इट्स टू लेट दैट टाइम टू चेंज. जब वक्त है कर लो, वक्त है कर लो, नहीं बाद में. अभी थोड़ा जिंदगी के मजे लेके बाद में, ये बाद में कभी आएगा. एंड व्हेन यू डू वन मिस्टेक एंड यू स्लिप आउट ऑफ द साइकिल ऑफ डिवोशन and enter into the cycle of repeated birth and death, you yourself don't know. Devotion is also a cycle, mind you.
You evolve. It's like, we have this evolvement from monkey to human. एक Mr. Idiot डार्विन ने एक थियरी डाला था ना, तो वैसा है इन डिवोशन ऑल्सो यू इवॉल्व. फर्स्ट ठीक है, वो बोल रहे हैं ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं. प्रभु जी बोल रहे हैं सब ठीक है, क्या है, रोज सुबह उठ के दाल भात कमाने के लिए भागना पड़ता है, दाल रोटी कमाने के लिए. He is not practical, he is theoretical. He is right in his place, but we are right in our place. This is how it starts with. But then there is an evolvement. थोड़ा लाख खा के सीखता है. अरे मैं लिटिल डिवोशन, मेरे को फायदा हुआ, एंड वो फायदा से मैं बच पाया. In good and bad situations, I could save myself. Slowly that evolvement comes. And जिसके ऊपर कृपा ज़्यादा हो, the evolvement is faster. कोई लोग इवॉल्व नहीं होना चाहिए, जैसे अभी आते इवॉल्व ही नहीं होना चाहिए. I know people who come all 7 days to the temple. I know that personally. He was one of them. All 7 days. Any day you go in the evening, few people will be sitting in some class or the other. क्यों? What is the reason? एक बार एक गुरु को चेला मिला, तो चेला बोला, मतलब चेला मिला, बोला गुरुजी हमको आप दीक्षा दे के आपका चेला बना. ठीक है, चेला बना. अब क्या करें गुरुजी, चेला बन गए, राम राम जपो. ओ उसमें कौन सी बड़ी बात, कुछ हायर चीज बताओ. हरे कृष्ण महामंत्र जपो, भगवान की पूजा, वो सब ठीक है, कुछ हायर बात बताओ. दैट कैटेगरी ऑफ पीपल आर आल्सो देयर who want something higher. Something higher means they want to do at par of what their Guruji does. The Guruji also wants you to do what he is doing at par, but for that you have to evolve. You have to evolve. You have to undergo the process. There is a process by which you come up in life, in ladder. You can't directly come and say on the very first day of school, नहीं मेरे को सीधा 10वीं में डाल दो, ये 5वीं 6वीं तो मुझे करना ही नहीं, सीधा मुझे 10वीं में डाल दो. You can't evolve. You will not accept or learn it. So at time he says you all will go back to heaven the day you are caught or you are looted and so that is why Vyasdev tells Arjuna Romat. This was already predestined. ये बात सही है कि तेरा गांडीव चला नहीं, तेरे कर्कश में से बाण निकले नहीं, because this was all happening because of Lord. Arjuna tells, yes, now I realize I could fight with Bhima and Drona only because of Lord. Without them, I could not fight. That time Vyasdev says, don't think, even Bhima and Drona could fight because of the Lord. And Bhishma could fight because of लॉर्ड. अगर भगवान नहीं रहते तो वो लोग भी, हम खुद भी, अगर यहाँ में कोई जन ईमानदारी से बोले भगवान जा मुझे परेशान मत कर, तू अपने घर पे, मैं अपने घर, तो लॉर्ड सेज आई एम गोइंग, बाय बाय, एंड ही लीव्स योर बॉडी एंड गोस. कैन यू सर्वाइव फॉर अ मिनट? कोसो गाली दो, जो भी करो, ये परमात्मा हैज टू बी देयर, देन ओनली यू कैन बी अलाइव. नहीं तो यू विल डाई द वेरी मोमेंट यू विल डाई. Understand that what Arjuna was telling was his true experience, that everything sarva karana karanam. Lord is, what is the Brahma Samhita first sloka kya hai? Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. He सभी कारणों के कारण. अगर आपका काम बना तो उसका पीछे भी कारण भगवान, काम नहीं बना तो उसके पीछे भी भगवान. इसीलिए भगवान बोलते हैं ना, लॉ ऑफ कर्म छोड़ के कुछ नहीं कर सकते हैं. और हम लोग इसलिए भगवान ने क्या बोला, कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन. तो कर काम, तेरा कार्य कर, फल से इच्छा मत रखना. अगर लॉ ऑफ कर्म के हिसाब से अगर तुम्हारे नसीब में फल है, तुम्हारा प्रमोशन है, तुम्हारा अप्रेजल है, तुम्हारा
कुछ अच्छा होने वाला है तो वो होगा, और इट विल बी एज पर द लॉ ऑफ कर्म, कर्म ने वाली यू कैन नॉट डिसाइड द कर्म. लेट्स से you apply for a job and you get a say 20 lakh package. She also applies for a job, she gets 50 lakh package. बोलेगा प्रभु जी देखो ना, उसको वो कंपनी में जॉब मिला, मुझे ये कंपनी में जॉब मिला, मेरा 20 लाख है, उसका 50 लाख है. कर्म दोनों ने किए, और एक को मिला 50 एज पर द लॉ ऑफ कर्मा, इसको एज पर द लॉ ऑफ कर्मा 20. So it is all depends on law of karma. You cannot over run your law of karma. Yes, but if you are a devotee, Lord definitely gives you some discount. बस 4 झापड़ खाना था तो 1 झापड़ खा के आए, नुकसान करोड़ों का होना था तो लाखों में होगा, और होगा जरूर. You cannot bypass it, and that is also for your good. That is also for your good. Why? Because that tells you there is a problem in this world. Don't try to be happy in this world. Better focus on God. Because only in problems you remember God. बुद्धि महाराज ने क्या बोला? विपद संतुष्ट शाश्वत, दुखी देते रहो. विपदा मुझे देते रहो. जब जब आप विपदा दोगे आपका दर्शन होगा, और मैं आपका दर्शन कर पाऊंगी कि तभी मैं आपको याद करती हूँ. उसके पहले हम लोग कभी याद नहीं करते हैं. जब सुखी हैं तो भगवान बोलने के लिए बोलते हैं, डायलॉग मारते हैं, भगवान की कृपा से बढ़िया चल रहा है. इट्स अ डायलॉग, जस्ट रिटन डायलॉग, जिसमें कोई तथ्य नहीं है, हम लोग उसमें कोई सच्चाई देखते नहीं. सब बढ़िया चल रहा है, भगवान की कृपा है, बढ़िया चल रहा है. जस्ट अ डायलॉग वी स्पीक, बट एक्चुअल इन लाइफ nothing works. Okay, read 16. We'll start the lecture. Great generals like Bhishma, Drona, Karna, Bhuriswara, Shusharma, Sailya, Jayadratya, and Bahilika all directed their invincible weapons against me. But by His grace, they could not even touch a hair on my head. Similarly, Prahlad Maharaj, the supreme devotee of Lord Nrsimha, was unaffected by the weapons the demons used against him. Next one. It was by His mercy only that my enemies neglected to kill me when I descended from my chariot to get water for my thirsty horses. And it was due to my lack of esteem for my Lord that I dared engage Him as my chariot driver. For He is worshipped and offered services by the best men to attain salvation. Next one. O King, His jokings and frank talks were pleasing and beautifully decorated with smiles. His addresses unto me as, O son of Partha, O friend, O son of Kuru dynasty, and all such heartiness are now remembered by me, and thus I am overwhelmed. This he is telling all this to whom? Yudhishthira Maharaj. But in Vishnu Puran, it is Vyasdev who tells it is time for the Pandavas to leave now. After he tells the entire narration of that 1100 wives being stolen away, that time he tells अर्जुना, व्यासदेव टेल्स, ये एक इंडिकेशन है आपको आपका धरती का लीला खत्म करके जाना है. क्यों? भगवान अपने धाम चले गए, आपको भगवान के पार्षद हो, आपको भी वहां जाना है. एंड दैट इज व्हाई दे स्टार्ट गोइंग. Whereas here he is again Arjuna is telling कि what I did was only because of the Lord, otherwise I was incapable of anything. Next verse. Generally, both of us used to live together and sleep, sit, and loiter together. And at the time of advertising oneself for acts of chivalry, sometimes, if there were any irregularities, I used to reapproach him by saying, "My friend, you are very truthful." Even in those hours when his value was minimized, he, being the supreme soul, used to tolerate all those utterings of mine, excusing me exactly as a true friend
excuses his true friend, or a father excuses his son. Continue. O Emperor, now I am separated from my friend and dearmost well-wisher, the Supreme Personality of Godhead, and therefore my heart appears to be void of everything. In his absence, I have been defeated by a number of infidel cowherd men while I was guarding the bodies of all the wives of Krishna. Just now I mentioned the entire story in the Leela. Yeah, next verse. I have a very same Gandev bow, the same arrow, the same chariot drawn by the same horses, and I use them as same Arjuna, to whom all the kings offered their due respect. But in the absence of Lord Krishna, all of them at the moment's notice have become null and void. It is exactly like offering clarified butter on ashes, accumulating money with a magic wand, and sowing seeds on barren land. It's like he's saying, जो भी भौतिक चीजें आपको मिलती हैं, it is like sowing seed in a barren land. जो कहाँ पे वो कोई फल नहीं होगा, कोई पेड़ उगने वाला नहीं है, वहां पे जाके हम लोग बो रहे हैं. ये भौतिक धरती भी वैसे ही है. जो भी आप करके डाल के जा रहे हो, किसके लिए? खावत है. पहली पीढ़ी बनाती है, दूसरी पीढ़ी उसको खड़ा करती है, तीसरी बड़ी पीढ़ी उसको भोगती है, चौथी पीढ़ी नष्ट करती है, और पांचवा पीढ़ी पूरा बैक टू स्क्वायर में. This is a general, this is a human saying, it's not a शास्त्रिक saying, it's a human saying. कुछ पीढ़ियां बढ़ाती है, कुछ पीढ़ियां रखती है, कुछ पीढ़ियां उसको गिरा देती है. Yeah, one more, next verse. O king, since you asked me about our friends and relatives in the city of Dwarka, I will inform you that all of them were cursed by the Brahmanas, and as a result, they all became intoxicated with wine made of putrefied rice, and fought amongst themselves with sticks, not even recognizing one another. Now all but four or five of them are dead and gone. Next. Factually, this is all due to the supreme will of the Lord, the personality of Godhead. Sometimes people kill one another, and at other times they protect one another. Continue. O king, as in oceans the bigger and stronger aquatics swallow up the smaller and weaker ones, so also the supreme personality of Godhead, to lighten the burden of the earth, has engaged the stronger Yadus to kill the weaker, and the bigger Yadus to kill the smaller. Now I am attracted to those instructions imparted to me by the personality of Godhead, because they are impregnated with instructions of relieving the burning heart in all circumstances of the time and space. This is what he is referring to. So, leaving. Huh? Now I am attracted to those instructions imparted to me by the personality of Godhead Govinda, because they are impregnated with instructions for relieving the burning heart in the circumstances of time and space. Bhagavad Gita. He is already referring to the Bhagavad Gita knowledge. This was a personal one-to-one tuition given by Arjuna to by Krishna. अर्जुना को 1-to-1 ट्यूशन दिया था अर्जुना को कृष्ण ने. तो इसे ये सोच के मैं अपने आप को मैं धाड़स दे रहा हूं. तो अगर अर्जुन दे सकता है तो हम भी अपने आप को धाड़स दे सकते हैं कि फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ द भगवद गीता वी लर्न हाउ टू लिव. यस, कंटिन्यू. Suta Goswami said, thus being deeply absorbed in thinking of the instructions of the Lord, which were imparted in great intimacy of friendship, and in thinking of his lotus feet, Arjun's mind became pacified and free from all material contamination. Next. Arjuna's constant remembrance of the lotus feet of Lord Sri Krishna rapidly increased his devotion, and as a result, all the thresh in his thoughts subsided. So one can only control their mind by focusing his mind on God. Baki rest all things are not going to give any remorse. Yeah, next one. Because of the Lord's pastime and activities, and because of his absence, it appeared that Arjuna forgot the instructions left by the personality of Godhead. But factually,
this was not the case. And again he became Lord. He Of his became Lord of his senses. senses. Very important. Please try to understand this. Lord says in the Bhagavad Gita also, कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि आदमी अपने भक्ति मार्ग से थोड़ा भ्रमित होके डिविएट हो जाता है. Deviate. Maya is sometimes very strong. It pulls you. Like sometimes Maya tells Jigar Prabhu, grow your beard now. You have to attend marriage. You have to attend. You have to physically you have to look nice. And Maya comes and then it deviates. That's deviation. And then again it comes back. Why? That is the power of spirituality. A true devotion, true love done to God always pays back. And this is my experience, not with one. I have seen thousands and thousands of cases. We have a senior devotee, Chandrakant. Very senior to me also, technically speaking. Because in college time he was attending. Rajesh Gopi today has not come. He has gone to Jagannath Puri and all with Rupalas Prabhuji. Very senior. At that time they were all not married. So they entered into devotion few years. Did whatever they could do, they did. Then they got deviated, went into Maya life, whatever you call it. But एक बार जो आपने, your crush on God is there, no? That will never leave you. एक बार आपने भगवान को वाकई में एक बार भगवान का हाथ पकड़ा है ना, आप उसको छोड़ के जाओ, वो आपके पीछे लगेगा. माया देवी भी ऐसा है. I don't know, start the topic, very short, I'll just end in 2 minutes. कहते हैं कि जब तक आप माया के पीछे भाग रहे हो तो ठीक है. जिस दिन माया देवी ने घुमा के आपको भगाना चालू किया ना, यू आर रनिंग अहेड एंड पीछे माया देवी है ना, बहुत भारी पड़ेगा. उल्टा जब तक है ठीक है, अगर भगवान के केस में एक बार भगवान का आपने हाथ पकड़ा ना, आपको कभी नहीं छोड़ेगा. कोई ना कोई बहाना तरीका किसी ना किसी को निमित्त बना के आपको वापस लेके आएगा. यू कैन नॉट, यू ट्राई लाख तक कोशिश, कल से नाम नहीं लूंगा, चाहो don't, but you can't remove from the mind, because once he occupies the mind na, whatever you do you cannot shake him. And that is what he is saying. He got deflected from the instructions. See, God here may be in the form of Bhagavad Gita instructions, but you may deflect from the instructions for some time. Maya may attract you, Maya may make you feel okay, but आज नहीं तो कल व्यक्ति को भगवान बराबर लात मार के जगह पे लेके आएगा. Will bring you to the process. At least he will bring you in the process in which, that is why Lord is saying, he says, Swalpamasya dharmasya trayate mahto bhayat. And very important shloka he says in the 9th chapter. Abhichet suduracharo bhajante mam ananya bhav sadhurev sav mantavih samag vyavasthito hi sah. क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नामे भक्त्या प्रणश्यति. मेरा भक्त का कभी नाश हो ही नहीं सकता. किसी ना किसी तरीके से, कुछ नहीं तो अगले जन्म में एक बाबा बन जाओगे. कुछ नहीं तो भगवान बोलेगा बाबा बना, ऐसा पोजीशन में डाल देंगे. यू कैन नॉट एंड यू शुड नॉट ऑल्सो. I mean, it would be foolish. It's like making a nice cake, making a nice icing over the cake, and then hitting it with a stick. Cut and eat the cake. Don't spoil the cake. आजकल जो होता है ना, पार्टी में मुंह में मलते हैं ना केक. Idiots. और बाद में बोलते हैं गरीबों को खाना देने से अच्छा है, भगवान को दूध पिलाने से अच्छा गरीब को अपना केक मलते होते चलते, तब गरीब याद नहीं आता. So please understand, this is where the problem is. So least should you leave, but by chance अगर किसी कारणवश भगवान से कनेक्शन थोड़ा समय के लिए टूट भी गया तो भगवान वापस उसको जोड़ देंगे. ये भगवान का गारंटी. अजामिल तो वो कभी था ही नहीं, कनेक्टेड नहीं था. Ajamil story comes with a very specific shloka which Vyasadeva tells. Sakrit bana Krishna pradar vendeyo niveshitat guna ragar yehi hai. Nate yam pasham rata sitat batham.
स्वप्ने अपि न पश्यन्ति चिरान् निष्कृतः. Lord clearly says this shloka. There is Vyasdev does this shloka, or rather Sukdev Goswami tells this shloka, and बोलते ये एक श्लोका समझाने के लिए उनको पूरा अजामिल का स्टोरी बचना पड़ा. सक्कन मना कृष्ण पदार विंध्यो, गलती से भी भगवान का नाम ले लिया तो भी ये फायदा है. दैट इज टू से वर्स्ट कम वर्स्ट केस. हम लोग तो वर्स्ट कम वर्स्ट में नहीं है, तो यू शुड बी हैप्पियर. हम लोग 35 प्लस है, बिलो 35 वालों के लिए हम लोग 35 प्लस है. हाँ 80-90 पे जाएंगे, कोशिश करें तो जाएंगे. ओके, दिस आई लाइक क्लोज टुडेज क्लास.